کہ نیپرا نے بجلی ₹1.38 فی یونٹ مہنگی کر دی۔ بجلی جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ مطابق صارفین سے اضافہ ستمبر کے بلوں میں موصول ہوگا۔ اضافے کا اطلاق کہ الیکٹرک لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر ہے، نیپرا نے بجلی ₹1.38 فی یونٹ مہنگی کر دی ہے۔ بجلی جولائی کو فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ نیپرا کی نوٹیفیکیشن کے مطابق صارفین سے اضافہ ستمبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ نیپرا نے بجلی صارفین کو 440 ووٹ کا جھٹکا لگا دیا ہے۔ بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے شہری پریشان ہیں۔ وسیم شہزاد کی رپورٹ۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام پر حکومت کی جانب سے ایک اور وار۔ نیپرا نے بجلی صارفین کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا دیا۔ بجلی کی قیمت میں ₹1.38 اضافے سے شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ شہریوں نے حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ میں اپنی سیلری میں سے اپنے بل بھروں گا یا اپنے بچوں کو روٹی کھلاؤں گا یا اپنے گھر کا خرچہ پورا کروں گا، ہم تو لٹ جائیں گے، ہم تو برباد ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ یار ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے، یہ کچھ ملک کے لیے اچھا کرے گا، لیکن ملک اتنا ہی نیچے جا رہا ہے جتنا ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو غریب اور متوسط طبقے کا خیال کرنا چاہیے۔ مہنگائی کے بار کم نہ ہوئے تو وہ خودکشیوں پر مجبور ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب، آپ تو اے سی او کے کمروں میں بیٹھے ہیں، آپ کو یونٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس غریب آدمی سے پوچھو جس کے گھر میں آٹا بھی نہیں ہے، جس کے گھر میں بچے روٹی نہیں کھا سکتے، وہ بل کہاں سے بھریں گے؟ شہریوں نے حکومت سے بجلی سستی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ ہفتے کے دوران آٹا، گھی، آلو، ٹماٹر، پیاز، چکن سمیت کھانے پینے اور روزمرہ استعمال کی 24 اشیاء مہنگی ہو گئی۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ عوام کا بچنا ناممکن، مہنگائی نے شکنجہ مزید کس لیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہفتے کے دوران کھانے پینے اور روزمرہ استعمال کی 24 بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں 23% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پیاز کی فی کلو اوسط قیمت میں ₹12، ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں ₹11.36 اور چکن کی فی کلو قیمت میں ₹15.27 کا اضافہ ہوا۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا ₹58، انڈے ₹6.30 فی درجن اور دال مسور ₹3.65 فی کلو مہنگی ہو گئی۔ لہسن، آلو، گھی، دال ماش، کوکنگ آئل، دودھ، دہی، باسمتی چاول، دال ماش، مٹن اور بیف کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق رواں ہفتے کے دوران کھانے پینے اور روزمرہ استعمال کی 51 بنیادی اشیاء میں سے 45 گزشتہ سال کے مقابلے میں مہنگی فروخت ہوئی۔ گھی کی قیمت گزشتہ سال کے مقابلے میں 41%، چکن 39%، کوکنگ آئل 37%، سرخ مرچ 36% اور انڈوں کی قیمت 31% زیادہ ہو چکی ہے۔ بجلی گزشتہ سال کے مقابلے میں 47%، ایل پی جی 46% اور جوتے 33% مہنگے ہو چکے ہیں۔ حکومتی دعووں کے برعکس مہنگائی آئے روز نئے ریکارڈ بنا رہی ہے۔ ہفتے کے دوران مہنگائی کی اوسط شرح 1.37% اضافے سے 13.64% ہو گئی، تاہم غریب طبقے کے لیے مہنگائی کی شرح 17.02% رہی۔ پی خان ڈویژن میں خدمت آپ کی دہلیز پر مہم کے تحت پرائس کنٹرول کو فوکس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمشنر سارا اسلم کہتی ہیں کہ چاروں اضلاع میں ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اجلاس کے دوران کمشنر ڈی خان کو بتایا گیا کہ 1 اگست سے 9 ستمبر تک چاروں اضلاع میں پرائس کنٹرول ایکٹ کے تحت 300 مقدمات درج ہوئے۔ سرکاری نرخ سے زائد قیمت وصول کرنے والوں کو جرمانے کیے گئے ہیں، جبکہ چاروں اضلاع میں 102 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے مارکیٹوں کے 68,641 معائنے کیے۔ ڈویژن میں 39 روز کے دوران پرائس کنٹرول ایکٹ کی 19,086 خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ کمشنر سارا اسلم کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر سرگرمیوں کا خصوصی آڈٹ کریں۔ اس کے علاوہ سیکٹری مارکیٹ کمیٹی متعلقہ ایپ پر اشیاء خنوش کے درست نرخ اپلوڈ کریں۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں مرغی کے گوشت کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ علی پور میں ایک ہی دن میں گوشت 20 اور بہاول نگر میں ₹14 فی کلو مہنگا ہو گیا۔ جنوبی پنجاب میں برائلر مرغی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں ایک ہی دن میں ₹20 فی کلو اضافہ ہونے سے گوشت ₹280 کلو ہو گیا۔ مہنگائی سے پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ کھانے پینے کی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، ہم کہاں جائیں؟ پہلے مرغی کا ریٹ ₹180 کلو تھا، آج مرغی کا ریٹ ₹280 کلو ہے۔ اتنی مہنگائی ہو رہی ہے، حکومت کا حق بنتا ہے کم سے کم ان سے پہ کنٹرول کرے، ہر چیز پہ کنٹرول کریں۔ سبزی ہوگی، گھی ہو گیا، آٹا ہو گیا، چینی ہو گیا، لیکن غریب آدمی بہت پریشان ہے، کہاں جائیں غریب آدمی۔
भावल नगर में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत एक दिन में 14 रुपए फी किलो बढ़ गई, जिससे 1 किलो गोश्त 274 रुपए किलो तक पहुंच गया है। कल भाईजान गोश्त लेके गए थे हम 260 रुपए किलो, आज गोश्त लेने आए तो 273 रुपए किलो। हुकूमत पाकिस्तान से हमारा सवाल है, गरीब आवाम में कुछ ख्याल करे, मुर्गी का रेट बहुत बढ़ रहा है। शहरियों का कहना है कि ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। महंगाई के मारे आवाम ने हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने और आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे दावों तक महदूद होकर रह गए। शहरी आटे के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। रंगपुर यूटिलिटी स्टोर पर 10 दिन से आटा गायब है। यूटिलिटी स्टोर पर आटा न मिलने की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए। शहरियों का रोज सुबह लाइनों में लगकर आटे का इंतजार करना और आटा न मिलने की वजह से नाकाम वापस लौटना मामूल बन गया। शहरियों ने कहा कि आटे की अदम दस्तयाबी ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। हुकूमत ना तो महंगाई को कंट्रोल कर रही है, ना ही अशिया की फराहमी को यकीनी बना पा रही है। शहरियों की जानिब से रंगपुर यूटिलिटी स्टोर पर आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। 25,000 लीटर अलाइशों से तैयार कुकिंग ऑयल तल्फ कर दिया गया। अड्डा लाड़ शेरशाह के करीब डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन की सरबराही में नाकिस ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। अड्डा लाड़ शेरशाह के करीब डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन की सरबराही में नाकिस ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। फैक्ट्री को पंजाब प्योर फूड रेगुलेशंस के तहत बंद कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना था कि जहरीले ऑयल को शहर भर में निमको, पापड़ फैक्ट्रियों और रेस्टोरेंट पर सप्लाई किया जाना था। 15,000 लीटर क्रूड ऑयल जबकि 10,000 लीटर तैयारशुदा ऑयल के टैंकर्स को मौका पर तल्फ कर दिया गया। कुकिंग ऑयल को ब्लीचिंग से साफ करने के तैयार किया गया था। अलाइशों से बने ऑयल से कैंसर, दिल, जिगर के मोहल्ले के अमराज पैदा होते हैं। सीएम पंजाब की हिदायत पर मिलावट माफिया के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। बात करेंगे कोविड की। कोरोना की चौथी लहर मजीद खतरनाक हो गई। जनूबी पंजाब में 6 अफराद जान से गए। एक ही रोज में 507 अफराद वायरस का शिकार हो गए। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर काबू में नहीं आ रही। मुल्तान और डीजी खान 2-2 जबकि भावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में 1-1 मरीज कोरोना की वजह से जान की बाजी हार गए। मुल्तान में 94, डीजी खान 85 और सरगोदा में 65 अफराद मुतासिर हो गए। भावलपुर में 57 और खुशाम में 42 मजीद अफराद वायरस का शिकार हो गए हैं। खानेवान में 38, भक्कर 31 और रहीम यार खान में 30 केसेस सामने आ गए। मुजफ्फरगढ़ में 12, लैया 19, राजनपुर 11, मियां वाली 9, भावल नगर और बिहाड़ी में 7-7 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 318 अफराद जेर इलाज हैं, जिनमें से 85 वेंटिलेटर्स पर हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कोरोना वार्ड में जेर इलाज 278 मरीजों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई। दूसरी जानिब डीजी खान में मुस्बत केसेस की शरह 12% तक पहुँच गई और वैक्सीनेशन की 42,000 खुराकों का स्टॉक रह गया। उधर मियां वाली में मुस्बत केसेस की शरह 16% से भी तजावुज कर गई। मियां वाली के 2 और तहसील पिपला के 2 मकामात को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। यही नहीं, ट्रैफिक पाबंदियों के बावजूद भी चल रही है। मुल्तान में कोरोना के पेश नजर जिला इंतजामिया का अहम इकदाम। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने पैरामेडिकल स्टाफ और वेंटिलेटर्स भी मुख्तस करने की हिदायत कर दी है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की सरबराही में महकमा सेहत का आला सतही इजलास हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद और निजी अस्पतालों के मुंतजमीन शरीक हुए। जिला इंतजामिया की जानिब से कोरोना के पेश नज़र निजी अस्पतालों में इजाफी बेड्स मुख्तस करने का फैसला किया गया। इजलास से खिताब में उनका कहना था कि जिला मुल्तान कोरोना वबा के हवाले से 11 हसास अजला में शामिल है। ऐसे में अस्पतालों को बिला इम्तियाज ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाएंगे। निश्तर में 400 से जायद बेड्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस हैं, जबकि निजी अस्पतालों की खदमात के हसूल का मकसद हंगामी हालात के लिए तैयार रहना है। उनका मजीद कहना था कि शहरी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन करवा कर कौमी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करें। शहर औलिया में 2 रोज़ा हफ्तावार मुकम्मल लॉकडाउन का आज पहला रोज है। तमाम तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। शहर की बेशतर मार्केटें बंद और सुनसान पड़ी रहीं। कोरोना वायरस की चौथी लहर के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान समेत सूबे के दीगर अजला में 2 रोज़ा हफ्तावार मुकम्मल लॉकडाउन का 15 सितंबर तक के लिए ऐलान किया गया था, जिसके तहत शहर औलिया में लॉकडाउन की आज पहले रोज तमाम तिजारती सरगर्मियां बंद रहेंगी। एक मजदूर बंदा खुदकशी करने को ज्यादा तरजीह देता है इस लॉकडाउन की वजह से। 2 दिन लॉकडाउन है, उसमें एक ताज़ा कमाने वाला जो है डेली का मजदूर है
2 दिन वो ना काम मिलता है, घर बैठा है, बच्चे फाके से मर रहे हैं। अगर किराएदार है उसने किराया भरना है, ऊपर से बिजली के बिल इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। शहर की बेशतर मार्केटें आज बंद रहीं। गुलशन मार्केट, मुमताज़ाबाद मार्केट, गुलगश्त मार्केट, कैंट बाजार और हुसैन आगाही बाजार में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। शहरियों का कहना था कि कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र हुकूमत का लॉकडाउन का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। कारोबार जब बंद होगा तो जाहिर बात है तो परेशानी तो होगी ना, खाने पीने में, आने जाने में। अब जो भी गरीब बंदे हैं, एक दिहाड़ी का 1000 रुपये बनता है, तो 1000 रुपये में आजकल बनता क्या, कुछ भी नहीं। तो वो भी अगर छुट्टी हो जाती है तो फिर उसके बाद तो कितना नुकसान होता है। शहरियों का मजीद कहना था कि लॉकडाउन से जहां कारोबारी अफराद काफ़ी परेशान हैं, वहीं मुलाजमत पेशा कई अफराद बेरोजगार भी हुए हैं। ऐसे में हुकूमत को कोरोना वायरस की सूरत हाल के साथ साथ मुआशी हालात को भी देखना होगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। एनसीओसी ने कोरोना पाबंदियों में 15 सितंबर तक तोसी कर दी है। तालीमी इदारे, जिम्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजीद एक हफ्ता बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। कोरोना की चौथी लहर के इंतहाई खतरनाक होने पर पंजाब में पाबंदियों में तोसी कर दी गई है, जिस पर बहावलपुर के ताजर और मजदूर शदीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। ताजरों का कहना है कि कारोबार बंद होने की वजह से हमारा रोजगार इंतहाई मुतासिर हुआ है। मजदूरों ने भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है गरीब आवाम का। बाज़ का जो 200-300 दिहाड़ी वाले लोग हैं उनपे क्या, एक तो 300 रुपये में आता ही कुछ नहीं आजकल के दौर में, और जिसकी 250-300 रुपये दिहाड़ी होगी उसमें भी अगर लॉकडाउन ये लोग कर देते हैं, मजदूर बैठे हुए हैं या कॉस्मेटिक की दुकान है, ये बाजार बंद हो जाता है, तो फिर किस तरह चलेगा। मुजफ्फरगढ़ के ताजरों और शहरियों ने भी लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया। ताजरों का कहना है कि पहले ही लॉकडाउन की वजह से मुआशी मुश्किलात का सामना है, जबकि शहरी कहते हैं कि हुकूमत सफरी परेशानियों का कोई बेहतर हल निकाले। बहुत सारा असर पैना पे सारी रोजगारी है कहना, सारी परेशान थी दे शाम को वेले फिर घर वालों ने शाम को तो ब्याई घर दा रोजी दी परेशानी लॉकडाउन खत्म करें, सवारियां चलावन, सारी को रोजगार का निजाम अच्छा थी, सही थी, असा अपने घर दे अपने बच्चे को रोजी खवा सको। उधर हिमयार खान में शॉपिंग मॉल, दुकानें और मार्केटें बंद रहेंगी और हफ्ता को भी बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तालीमी इदारे, इंडोर जिम्स, शादी हाल को भी पाबंदी का सामना है। स्कूल बंद कर दिए हैं इन्होंने, मैरिज हाल बंद कर दिए हैं, बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, वो रुक गई है। इधर से ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया है। गवर्नमेंट को चाहिए ये खोलें, इसका कोई मुस्बत सद्देबाब करे, रोजगार तो ना छीने ना आवाम का। गरीब बंदा ना कमा सकते ना खा सकते। 300 रुपए किलो गेहूं है, बंदा क्या कमावे ते क्या खावे। ना गरीब बंदा खा सकते ना कमा सकते। असा तो बहुत ज्यादा परेशान है। जनूबी पंजाब के शहरियों ने हुकूमत से कोरोना पाबंदियां नरम करने और वैक्सीनेशन की रफ्तार मजीद बढ़ाने का मुतालबा किया है। जनूबी पंजाब वाले इनकम टैक्स गोशवारे जल्द जमा कराएं, नहीं तो कार्रवाई होगी। इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर। FPR मुल्तान का तारीख में मजीद तोसी न करने का फैसला। जनूबी पंजाब वाले इनकम टैक्स गोशवारे जल्द जमा करा दें, नहीं तो कार्रवाई होगी। इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर। मुल्तान में 12वीं जमात के नताज का 30 सितंबर को ऐलान होगा। मैट्रिक के नताज 16 अक्टूबर को आएंगे। तालीमी बोर्ड मुल्तान के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद कासिम की जानिब से तारीख का ऐलान कर दिया गया। मैट्रिक के इम्तहानात के नताज का ऐलान 16 अक्टूबर को किया जाएगा। मैट्रिक के इम्तहानात 13,03,577 उम्मीदवारों ने दिए थे। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बना दिया। नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून से सवाल किया कि अपोजिशन अपने वोट का पहले खुद एहतराम करे, वोट की ताकत से पहले बुज़दार को हटाएं, फिर इमरान खान की बारी आएगी। वो हिमयार खान में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। आज भी महंगाई है और हमारे दौर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब वफाक में हुकूमत कर रही थी तो पूरी दुनिया में मुआशी बहरान था। एक फाइनेंशियल रिसेशन हो चुका था जिसका असरात हर मुल्क को भुगतना पड़ा और उसकी वजह से हमारे यहां भी महंगाई था, बेरोजगारी थी, गुर्बत थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा, जैसे खान साहब ने इन 3 साल में इस मुल्क के अवाम को लावारिस छोड़ा है। आज भी लोग परेशान हैं, बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई है, मगर ना तनख्वाह में इजाफा ना पेंशन में इजाफा। आज भी हमारे नौजवानों को रोजगार की जरूरत है और इस सेब के नौजवान मेरे गवाह है कि पीपी का जब हुकूमत थी तो इस खित्ते के नौजवानों को रोजगार मिला था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी आपसे वादा किया है हमेशा वो वादे पूरे करते हैं। माजी में हमने आपसे वादा किया कि हम आपके लिए
हम वसेब का अलग सूबा बनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये जो आजकल बरस इक़्तिदार है, ये आपको लॉलीपॉप्स दे रहे हैं कि वो सेक्रेटेरिएट कायम कर रहे हैं। अगर इन्होंने सेक्रेटेरिएट कायम करने के ऐलान किया है तो आप समझो उन्होंने साथ साथ ऐलान किया है कि आपका सूबा वो नहीं बनाएंगे। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिनके ये कॉन्सेप्ट थी, पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने 2/3 मेजॉरिटी से सेनेट से पास करवाया, और पीपल्स पार्टी वो जमात है जो अगर हमने पख्तूनख्वा को शनाख्त दिलवाया, अगर हमने हर सूबा को उनको इख्तियार दिए, उनके वसाइल के मालिक बनाए, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो वसेब को एक सूबा का शक्ल में इंशाअल्लाह ताला आपके लिए। रहीमिया खान में बिलावल भुट्टो जरदारी की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो ताजरों की कारोबारी अफराद के मसाइल और उनके हल पर बातचीत हुई है। मखदूम अहमद महमूद, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, मखदूम उस्मान महमूद भी हमरा थे। मुलाकात में बशीर अहमद ख्वाजा, खलील अहमद, आजम शब्बीर ने शिरकत की। हाफिज रऊफ असगर की शिरकत, अतीकुर रहमान, इरबान शब्बीर, नदीम मकबूल, हमजाजर की शिरकत, अब्दुर्रहमान, आमिर जावेद, लियाकत अली, तौकीर, फैसल इस्लाम ने शिरकत की। मियाँ साद हुसैन, अली बशीर, तलहा लियाकत, डॉक्टर मंसूर तारिक, जैन मंसूर ने शिरकत की। नदीम मसूद, मोहम्मद यासीन, अब्दुल लतीफ, हाफिज मुदस्सिर, सुहेल, उस्मान अजहर की शिरकत। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी आज रात मुल्तान में क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी सुबह लिया जाएंगे जहां वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बाई एयर मुल्तान पहुंचे, जिसके बाद वो अपनी रिहाइशगाह बिलावल हाउस के लिए रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी रात मुल्तान में क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी हफ्ते को लिया जाएंगे जहां वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए लिया के रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। बहावलपुर में कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज उम्मीदवार जोड़ तोड़ में मसरूफ रहे। वार्ड नंबर 1 से पीटीआई के उम्मीदवार रेहान बिन जावेद का कहना है जीत इंशाअल्लाह हमारी होगी। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया है। अब उम्मीदवार जल्द से जुलूस या रैलियां नहीं निकाल सकते। उम्मीदवार अब कैंप ऑफिस या एक घर से दूसरे घर इलेक्शन कैंपेन जारी रखेंगे। वार्ड नंबर 1 में पीटीआई के उम्मीदवार रेहान बिन जावेद भी इलेक्शन के हवाले से सरगर्म हैं। उनका कहना है कि वो जीत के करीब पहुंच चुके हैं। 12 सितंबर को इसका ऐलान हो जाएगा। उम्मीदवार का हौसला बढ़ाने के लिए फ्लाइंग हार्ट से समीला खान, रहनुमा खवातीन विंग पीटीआई सुमारा मलिक भी मॉडल टाउन ए के कैंप में मौजूद रहे। मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में कुछ ही घंटे बाकी हैं। वोटर्स महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। मौसम मुल्क की रिपोर्ट। कैंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान इलेक्शन अपने फाइनल राउंड में दाखिल हो गया। उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम में भरपूर जोर लगाया। गली मोहल्लों में अपने वादों और दावों के बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए, लेकिन वोटर्स को तो सिर्फ रिलीफ ही चाहिए। तब्दीली कहाँ थी? हमें पुराना पाकिस्तान सही है हमारे लिए, जो हर चीज सही मिल रही थी, कारोबार खुले हुए थे। ये तो जब से आए थे हमारी जान छिड़वाओ। तो बोर्ड से चेंज आएगा समझते हैं? हम बोर्ड में चेंजिंग आएगी इंशाल्लाह। मुल्तान की कैंटोनमेंट इलेक्शन में वोटर्स को मुतवज्जा करने के लिए उम्मीदवारों ने दिन रात कॉर्नर्स मीटिंग्स, रैलियां, तकारीर की ताकि वो वोटर्स से वोट लेकर मुंतखब हो सकें। लेकिन वोटर्स इलेक्शन में पीटीआई हुकूमत के फैसलों से खुश दिखाई नहीं दे रहे। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी पर नाला है। वोट देंगे इंशाल्लाह, देंगे जिनको देंगे। महंगाई सस्ती हो और क्या होगी। मुल्तान कैंटोनमेंट इलेक्शन में जो भी उम्मीदवार जीता, इसको गली मोहल्लों में सहूलियात के फुकदान को खत्म करने जैसे चैलेंज का भी सामना रहेगा। कैंटोनमेंट इलेक्शन की गहमा गहमी तो अरूज पर है, लेकिन अवाम सिर्फ और सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी से इस वक्त छुटकारा चाहते हैं। क्या आने वाले इलेक्शन में जो मुंतखब उम्मीदवार होंगे वो अवाम को ये दे सकते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन रिजवान खान के साथ मुल्तान।
कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का सिटीजन पोर्टल पर मौसूल शिकायत पर फौरी एक्शन का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर सीओ कॉर्पोरेशन को 3 रोज में ज़ेर इल्तवा शिकायत के अजाले का टास्क सौंप दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद ने सिटीजन पोर्टल पर मौसूल शिकायत पर फौरी एक्शन का हुक्म दे दिया है। मुल्तान डिवीजन की 19,417 मौसूल शिकायत पर 18,291 शिकायत हल की गई हैं, जबकि उन्होंने इंतजामिया को सिटीजन पोर्टल बारे कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की गई है। उनका कहना था कि शहरियों की शिकायत पर बरवक्त कार्रवाई ही सिटीजन पोर्टल का असल मकसद है। जिला मुल्तान में पनाहगाहों की तादाद बढ़ाने का फैसला हो गया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान के अचानक जनरल बस स्टैंड पनाहगाह का दौरा नाकिस सफाई के इंतजामात पर बरहमी का इजहार किया। सेक्रेटरी आरटी राना मोहसिन को सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ने पनाहगाह के सामने टूटी सड़क की मुरम्मत के लिए भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए अहकाम जारी किए हैं। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब सेनेटर रौन अब्बास का कहना है कि उन्हें तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुत्तहिद करने का टास्क मिला है। मजीद देखिए जुनेद अनवर की रिपोर्ट में। सेनेटर रौन अब्बास पप्पी का अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इमरान खान ने मेरे जैसे कई इमरान खान पैदा कर दिए हैं। मुझे वर्कर्स और अरकान असम्बली को साथ लेकर चलना है। पहला हदफ मार्च में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन है। 3 साल से शाह महमूद कुरैशी से इख्तलाफात चल रहे थे, जो इनके पास जाकर खत्म कर दिए। आज से तकरीबन 10 साल पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 25 जून 2011 को मुल्तान तशरीफ लाए थे, और मैं अभी रास्ते में दोस्तों को बता रहा था कि जितने लोग आज मेरे इस्तकबाल के लिए, मेरे जनूबी पंजाब के सदर बनने की वजह से जो मेरे इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद थे, शायद इतने लोग उस वक्त इमरान खान साहब के लिए भी मौजूद नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज नए पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने एक नहीं हजारों मेरे जैसे इमरान खान पैदा कर दिए हैं। पीटीआई जनूबी पंजाब के सदर का कहना था कि जनूबी पंजाब से हमें 50% कामयाबी मिली। कौंसलर लेवल के 12 बंदे शामिल करवाकर बिलावल भुट्टो से हाथ किया गया। इतना बड़ा धचका कि मुख्तार जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपसे माफी मांगते हैं। गिलानी साहब ने आपके साथ हैंड कर दिया है। ये जनूबी पंजाब का आपको धोखा लेके 1 हफ्ते से जनूबी पंजाब में बैठे रहे हैं, वो जितनी बड़ी शिकस्त या जितनी बड़ी शर्मिंदगी या एम्बैरेसमेंट हुई है, मैं यकीनन उसके अल्फाज मेरे पास नहीं है। ओन अब्बास पप्पी का कहना था कि पीडीएम और अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, इसलिए ये उखड़े हुए हैं। शहबाज शरीफ जैसे लोगों को एहतसाब के कटहरे में पहली दफा लाया गया, चीनी चोरों को बेनकाब किया और करोड़ों रुपए जुर्माने किए हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब जफर इकबाल अवान का थाना कोहना का दौरा नाकिस सफाई और थाने के अफसरान की गैर मौजूदगी पर इजहार बरहमी की गई। डीपीओ खानेवाल को एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई। खातून की शिकायत पर तफ्तीशी एएसआई गजनफर को लाइन हाजिर करने का हुक्म दे दिया गया।